3 Gauss theorem. First article is area vector. What is area vector? मैं suppose कर लो कि अपने कोल एक area वा ds ਤਾਂ ਇਹਦਾ area vector ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਦੇ normal draw ਕਰਾਂਗੇ with the help of unit vector ਇਹਦੀ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ direction ਕਿ suppose ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਪੂਰਾ ਵਾ ds area ਵਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ area vector ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਆਊਟਵਰਡਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਇਹਦੇ ਡਰਾ ਕੇ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਕੈਪ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਏਰੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾਰਮਲ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਫੇਸ ਆ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾ total number of electric line of force crossing through the surface in a direction normal to the surface is known as its electric flux. Flux means quantity कि किन्ने number of एक अपने कोल area means electric flux हमेशा area ते depend करता वा जे आप area increase करता तो electric flux भी की increase हो जाएगा क्योंकि उन्नी ज़्यादा ही उधर विचों electric lines की होंगी हम cross करनी है जे area small करता तो electric lines आ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ cross ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗਾ ਕਿ ਮੀਨਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਫਲਕਸ ਮੀਨਸ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨ ਆਫ ਫੋਰਸ ਆ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਇਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਊਟਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ ਕਿ ਫਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਏਰੀਆ ਤੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਵਾ ਕਿ ਡੀ ਫਾਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਈ ਡਾਟ ਡੀ ਐਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਏਰੀਆ ਤੇ ਏਰੀਆ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਫਲਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਔਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਰਜ ਸਰਫੇਸ ਸੀਗਾ ਲਾਰਜ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਮੋਲ ਸਰਫੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਐਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ ਡੀ ਐਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਡੀ ਐਸ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਡੀ ਐਸ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੀਟਾ ਡਾਟ ਡੀ ਐਸ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਉਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਕੀ ਆ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇਹ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੋਰਸ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੋਨੇ ਕੀ ਆ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆ ਇਹ ਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਕ ਟਾਓ ਵੀ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਅਗੇਨ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਔਰ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਸ ਥੀਟਾ ਜੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਈ ਡਾਟ ਡੀ ਐਸ ਦੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਲੈਣਾ ਵਾ ਕਾਸ ਥੀਟਾ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇਹ ਸਮੋਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਮੋਲ ਏਰੀਆ ਕੀ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਡੀ ਫਾਈ ਸਮੋਲ ਏਰੀਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਡੀ ਫਾਈ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮੋਲ ਏਰੀਏ ਸਮੋਲ ਪਾਰਟਸ ਇਹਦੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਏ ਸਮੋਲ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੋਲ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮੋਲ ਪਾਰਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਲਕਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ
फ्लक्स आ गया टोटल सरफेस का फाई इज इक्वल्स टू की आ गया सरफेस इंटैग्रल दिस इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन when we write here s this is becomes surface integral along a closed surface E dot ds is equals to ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਕਿ cos ਥੀਟਾ ਜੇ ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ cos ਥੀਟਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ E ds ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ SI ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ SI ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ ਆ ਕਿ E dot phi is equal flux is equals to E dot ds. E means electric field. Electric field is equals to force per unit positive test charge. Force की unit की आ गई अपने को न्यूटन and charge की unit की होंगी है कूलम न्यूटन पर कूलम and next ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ E ds. ds means area. Unit of area is meter square. ਤਾਂ ਇਹਦੀ SI units ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इलैक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम एंड एरिया दे लिखी आ जाऊगा अपने को मीटर स्क्वायर नैक्सट आर्टिकल आ गया अपने को गॉस थ्योरम की डेफिनेशन की आ कि किसी भी की अपने को किया किसी सरफेस का जोड़ा टोटल इलैक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स दी मैगनीट्यूड ऑफ द चार्ज इनक्लोज इन इट एप्सिलॉन कर लिया है तुसी अपना पहला ही कि एप्सिलॉन नॉट की सीगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी होंदी है किसी मीडियम की किहदे विच की है गॉस थ्योरम दे विच गॉस थ्योरम आपां कंसीडर किहदे लई करनी है हमेशा ही क्लोज सरफेस दे विच जिन्ना भी चार्ज आ ये हमेशा ही क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होंगी ओपन सरफेस के लिए नहीं कि टोटल इलैक्ट्रिक फ्लक्स आ किसी भी क्लोज सरफेस आ ये इक्वल आ 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स दी मैगनीट्यूड ऑफ द चार्ज इनक्लोज इट इन कि सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज होया वा ਉਹਦੇ मैगनीट्यूड दे कि 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स दी टोटल मैगनीट्यूड ऑफ चार्ज इनक्लोज इन इट कि किसी भी क्लोज सरफेस के विच जिन्ना चार्ज इनक्लोज होया उन्होंने की कर देना आप 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स तो ये आपू की दूगा कि कितना टोटल इलैक्ट्रिक फ्लक्स उस क्लोज सरफेस के विच आ कि टोटल इलैक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू दी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स दी मैगनीट्यूड ऑफ चार्ज इनक्लोज इन इट इलैक्ट्रिक फ्लक्स नूं आपां किहदे नाल डिनोट करदे आ फाई नाल फाई इज इक्वल्स टू कि इक्वल आ गया अपने को अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट दी मैगनीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पहला आप ये करके हटे हाँ कि फाई कि इक्वल आया फाई इज इक्वल्स टू अपने को ई डॉट सरफेस इंटैग्रल ई डॉट डी एस ये क्वेश्चन आप कंपेयर कर लो इस क्वेश्चन के नाल कि फाई दी दो वैल्यूज़ आ गई अपने को क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस तो अपने को सरफेस इंटैग्रल ई डॉट डी एस की वैल्यू कि इक्वल आ गई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो अपने को गॉस थ्योरम की अदर डेफिनेशन की आ गई कि सरफेस इंटैग्रल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस इंटैग्रल है कि सरफेस इंटैग्रल इलैक्ट्रिक फील्ड का ओवर ए क्लोज सरफेस कि इक्वल आ गया अपने को 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम दी टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट नैक्सट है अपने को टू प्रूव गॉस थ्योरम आप प्रूव करनी आ कि सपोज किया वा आप कि कंसीडर ए पॉइंट चार्ज कंसीडर किया एट दी सेंटर ऑफ दी स्फीयर ऑफ रेडियस आर एक सेंटर स्फीयर के सेंटर से क्यों पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया जिसका रेडियस की सीगा अपने को आर आ लैट ई बी दी इलैक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी ऑन दी सरफेस ऑफ दी स्फीयर कि अपना की ये सरफेस ऑफ स्फीयर के उपर कोई भी पॉइंट पी लिया जी भी ये इलैक्ट्रिक फील्ड आ जी पॉइंट चार्ज तो किधर लगती पी आ एट एनी पॉइंट पी एंड रेडी आउटवर्ड डायरैक्शन च लगती पी है इलैक्ट्रिक फील्ड दैन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जोड़ा भी अपने को कूलम्स लॉज के अकॉर्डिंग अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड कि इक्वल आ ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वैक्टर आर की आ यूनिट वैक्टर आ किधर पॉइंट आउट करदा कि डायरैक्शन तो फ्रॉम
O to P पॉइंट आउट करता यूनिट वैक्टर। नैक्सट अपने को आ गया कि पूरे सरफेस के उपर आप की फाइंड आउट करनी आ इलैक्ट्रिक फ्लक्स। पूरे सरफेस के उपर इलैक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए आप की करना एक समॉल सरफेस है जो DS कंसीडर कर लेना। DS का यूनिट एरिया एलीमेंट की होगा DS वैक्टर। DS वैक्टर की आ गया अपने को एरिया एलीमेंट आ गया। इस तो बाद की आ गया अपने को कि इलैक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया एलीमेंट DS इज़ गिवन बाय की किता सी आपां कि DS इज इक्वल्स टू d फाई इज इक्वल्स टू E डॉट DS इज इक्वल्स टू E डॉट DS फ्रॉम क्वेश्चन 1 कूलम्स लॉ इन इलैक्ट्रोस्टैटिक आपां की गया अपने को ਇਹਦੀ वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू R यूनिट वैक्टर। नैक्सट अपने को आ गया एरिया वैक्टर DS। हम डायग्राम से देखो यूनिट वैक्टर तो एरिया वैक्टर DS दोनों के विचकार कितना एंगल बनता पे सेम लाइन पर लाई करते हैं। एंगल कितना इन्हों के 0। डॉट प्रोडक्ट में रिमूव करने लिए आप इत्थे लगाना एंगल जो भी डॉट प्रोडक्ट रिमूव करनी आ तो एंगल की आऊगा अपने को कॉस थीटा। आर कैप की अपने को यूनिट वैक्टर की वैल्यू की होंगी 1। ये अपने को आ गया DS कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज दोनों की है सेम लाइन ते की करते हैं लाइक करते हैं। नैक्सट कॉस अपने को आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर यूनिट वैक्टर 1 आ गया। DS एज इट इज़ थीटा की आ गया 0। कॉस 0 इज इक्वल्स टू 1 कि क्वांटिटी बची अपने को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू DS। ये जो अपने को इलैक्ट्रिक फ्लक्स आया वा ये किहदे लई सीगा कि समॉल एरिए दे लई सीगा। हुण आपां की करना वा टोटल इलैक्ट्रिक फ्लक्स अलोंग ए होल सरफेस पूरे सरफेस के उपर इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने लिए की करना आपां इंटीग्रेट कर देना ऑन बोथ साइड टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। दोनों साइड आपां की करना इंटीग्रेशन लैनी। एक साइड अपने को d इंटीग्रेशन अलोंग ए सरफेस। इस साइड अपने को इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू DS अलोंग ए क्लोज सरफेस। d की इंटीग्रेशन का फार्मूला की होंगे अपने को d अपने को आ जाऊगा फाई इंटीग्रेशन के फार्मूले तुसीं +1 भी किया कि अपने को चाहे और dx की इंटीग्रेशन की आऊगी x जे और अपने को dl आ तो इंटीग्रेशन की आऊगी l तो d की इंटीग्रेशन की आ गई अपने को 5। इस तो बाद ये देखो किहड़ियां कॉन्सटेंट क्वांटिटीज़ आ। कॉन्सटेंट क्वांटिटी की आ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्सटेंट आ। चार्ज भी की आ सरफेस दे विच की आ चेंज नहीं हो रहा। R स्क्वायर रेडियस भी नहीं सरफेस का चेंज हो रहा कि अपने को की चेंज हो रहा वा अपने को जो भी चार्ज दे डिफरेंट पार्ट के उपर की चीज़ नूं आपां इंटीग्रेट करते पे हैं सरफेस नूं। तो ये की आ गया अपने को सरफेस है जिहड़ा वेरीएबल आ बाकी सारिया क्वांटिटीज़ की आ कॉन्सटेंट आ। तो हुण सरफेस की इंटीग्रेशन की आऊगी सरफेस की इंटीग्रेशन की होंदी आ कि सरफेस एरिया कितना वा। सरफेस एरिया अपने को आऊगा सफीयर का जिहदा रेडियस की सपोज किया होया आपां R। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4 पाई R स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट कर दो की आ गया अपने को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो यदि इंटीग्रेशन का फार्मूला की आऊगा अपने को 4 पाई R स्क्वायर इंटू 4 पाई R स्क्वायर। हुण ये देखो कि क्वांटिटी कैंसल हो रही है 4 पाई R स्क्वायर कि क्वांटिटी रिमेनिंग क्वांटिटी की है अपने को Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही की अपने को गॉस थ्योरम का प्रूव आ गया कि फाई इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कि अपने को की सीगा कि टोटल इलैक्ट्रिक फ्लक्स कि 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज इट इज़ ए प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। तो अपने को की आ गॉस थ्योरम अपनी की होगी प्रूफ होगी। डेफिनेशन हैगी अपने को गॉसियन सरफेस का कि आप एक सरफेस ड्रॉ करना वा
कि अपने कोल चार्ज आ जिहड़ा पॉइंट चार्ज भी हो सकदा, पॉइंट ते भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकदा चार्ज, एक लाइन ते भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकदा वा, एक सरफेस दे उपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकदा, एक वॉल्यूम ते मीनस एक कल्ला ही चार्ज भी हो सकदा पॉइंट चार्ज, तो ਜਾਂ नंबर ऑफ चार्जिस एक लाइन सरफेस या वॉल्यूम के उपर भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। इज़ ए क्लोज सरफेस सच डैट इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ऑल दी पॉइंट ऑन दी सरफेस इज सेम एंड दी इलैक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी सरफेस अलोंग दी नॉर्मल टू दी स्फीयर। कि ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ एक सर्कल ड्रॉ करना वा, एक स्फीयर ड्रॉ करना जिहदे ते की चीज़ सेम होनी चाहिए, अपनी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जिहदे सारे पॉइंट्स से की होगी सेम होंगी। तो इस तरह के सरफेस नूं आपां की बोलना वा गॉसियन सरफेस। इहदी ईजी डेफिनेशन की आ कि गॉसियन सरफेस इज दैट सरफेस इन विच द वैल्यू ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम एट ऑल दी पॉइंट्स ऑन दी सरफेस। मीन जिहदे सिर्फ एक इदा सरफेस है जिते इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ की आ सेम आ ऑन दी सरफेस एट ऑल दी पॉइंट्स, हरेक पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की आ सेम आ। नैक्सट क्वेश्चन, ड्राइव कूलम्स लॉ फ्रॉम दी गॉस थ्योरम। कूलम्स लॉ आपां ड्राइव करना फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो ये लिए आपां की सपोज किया वा कि टू चार्जिज आ Q1 एंड Q2 प्लेस एट पॉइंट ए एंड बी एट ए डिस्टेंस आर। दोनों के विच कितना डिस्टेंस अपने कोल आर आ। तो नैक्सट हैगा कि Q1 चार्ज आ जिहड़ा Q2 ते की इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करदा, इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करदा ई। तो ई इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करन दे नाल Q2 ते की एक फोर्स अप्लाई करदा पिया Q1 चार्ज। कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है चार्ज Q2 ते कितनी फोर्स लग रही है, F इज इक्वल्स टू Q2 इंटू ई, बिकॉज इलैक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला की होंदा वा इलैक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इतों फोर्स की वैल्यू की हो जाएगी चार्ज इंटू इलैक्ट्रिक फील्ड। तो सैकेंड जिहड़ा Q2 आ उहदे उपर कितनी फोर्स लगती पई है, F इज इक्वल्स टू Q2 इंटू ई। नैक्सट आपां की फाइंड आउट करनी है, ई मीनस इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने लई पहला सिर्फ आपां की कंसीडर किए सी, दो चार्जिस कंसीडर किए सी। इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने लई आपां इहदे उपर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देना वा जिते इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होंदी है सेम होंदी है एट ऑल दी पॉइंट एंड उहदा रेडियस की लिया आपां गॉसियन सरफेस दा आर सपोज किया। ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस हैविंग रेडियस आर। दैन अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम अपने कोल की रिजल्ट आया सीगा कि सरफेस इंटैग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हुण ये इनक्लोज सरफेस के विच किहड़ा चार्ज है, इनक्लोज किहड़ा चार्ज है इनसाइड उहदे Q1, देयरफॉर इट इज इक्वल्स टू Q1। तो पहला यदि आपां लैफ्ट साइड सॉल्व करते हैं, लैफ्ट साइड दे विच की अपने कोल ई डॉट डी एस। जो भी हम डॉट प्रोडक्ट आ, डॉट प्रोडक्ट अपने कोल होगी तो डॉट प्रोडक्ट के लिए अपने कोल की होंदा एंगल किहड़ा आऊगा कॉस ई डी एस कॉस की आऊगा 0। जो भी आप डॉट प्रोडक्ट रिमूव करना तो की आ जाऊगा कॉस 0, क्योंकि ई भी अपने को इस साइड अप्लाई हो रही है। जे आप अपने को सरफेस कंसीडर किया स्मॉल सरफेस, यदा एक एरिया एलीमेंट भी अपना सेम साइड ही सेम डायरैक्शन च लगता पाया दोनों ई एंड डी एस। तो एंगल की आ गया अपने को कॉस 0। कॉस 0 नू रिमूव कॉस 0 इज इक्वल्स टू की आ जाऊगा अपने को 1। तो यह अपने को आ गया ई डी एस सरफेस इंटैग्रल। नैक्सट हुण अपने को की आ कि ये पुट करो दी वैल्यू ई डी एस 1 सपोज कर लो सॉरी 1 एफ इज इक्वल्स टू की सी अपने को Q2 ई। ये क्वेश्चन आप 1 सपोज कर लो, नैक्सट क्वेश्चन 2 सपोज कर लो कि ये को आ गया अपने को Q1 ई नोट। अगे ये की अपने को कि इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपां की कीती सी कि गॉसियन सरफेस के लिए इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ हरेक पॉइंट ते की आ सेम आ। जे कोई भी चीज़ हरेक पॉइंट ते सेम आ दैट मीनस वो की आ कॉन्सटेंट आ। तो कॉन्सटेंट नूं आपां की लिख लेना आउटसाइड
इंटीग्रेशन के बाहर लिख लो। तो इनसाइड इंटीग्रेशन की बचे अपने को ds की इंटीग्रेशन आप लास्ट आर्टिकल की सीगी कि सरफेस एरिया ऑफ दी स्फीयर की आ जाऊगा 4πr²। ये की आ गया अपने को E इंटू 4πr² इज इक्वल्स टू Q1 इंटू एप्सिलॉन नॉट। और ये देखो E कि इक्वल आ गई अपने को E इज इक्वल्स टू Q1 एप्सिलॉन नॉट 1/4πr²। इंटरचेंज करके लिख लो थोड़ा, टी आ जाएगा कि 1/4π एप्सिलॉन नॉट 4π एप्सिलॉन नॉट Q1/r²। ये जी वैल्यू आई है पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 अपने को की सीगी F इज इक्वल्स टू Q2 इंटू E। F दे विच की आ जाऊगा F इज इक्वल्स टू Q2 इंटू E। E दी वैल्यू आ सारी आई हुई है, ये सारी वैल्यू दे विच अपने कोल E इहदे नाल मल्टीप्लाई हो रहा सीगा Q2 दे नाल। तो ये अपने कोल आ गई कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की सीगा अपने कोल F इज इक्वल्स टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो ये अपने कोल किहदा प्रूफ आया, दिस इज ए प्रूफ ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इन इलैक्ट्रोस्टैटिक। ये अपने को आ गया कूलम्स लॉ इन इलैक्ट्रोस्टैटिक। की सीगा अपना क्वेश्चन कि आप ड्राइव करना सीगा कूलम्स लॉ की यूज़ किया आप गॉस थ्योरम यूज़ की कि पहला आप दो पॉइंट चार्ज लै ले Q1 Q2 r डिस्टेंस से सीगे। तो Q2 ते फोर्स कितनी लग रही है F इज इक्वल्स टू Q2E। नैक्सट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम की सीगा अपना F E.ds इज इक्वल्स टू Q1/एप्सिलॉन नॉट। नैक्सट लैफ्ट साइड पर देखो कि जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में रिमूव करने cos थीटा एंड एंगल इन्हों के विचकार की बनता पाया 0 cos 0 1 आ गया। नैक्सट की आ गया अपने को कि E है जी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटैंसिटी आ किसी गॉसियन सरफेस की सेम होंगी एवरी पॉइंट। तो की आ गया अपने को कॉन्सटेंट आ इंटीग्रेशन आप कि करनी आ ds की इंटीग्रेशन की आ गई अपने को 4πr²। ओनली ये इंटरचेंज कर लो क्वांटिटीज़। E की वैल्यू आ गई, E की वैल्यू आप कि पुट कर देनी है क्वेश्चन 1 के। तो यह कि प्रूफ आ गया अपने को कूलम्स लॉ इन इलैक्ट्रोस्टैटिक।